नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार ने जनता को दिया एक और बड़ा झटका। डीजल पेट्रोल पर भी बढ़ा दिए 3 रुपए। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि फ्री के नाम पर कर्नाटका में सरकार बनाने वाली कांग्रेस, जिन्होंने कहा था कि फ्री हो जाएंगे चावल और बसों का रेट भी कर देंगे कम और देंगे कर्नाटका में 5 गारंटियां। आज 5 गारंटियों के तहत तो कर्नाटका सरकार काम करती नहीं दिखाई दे रही है, पर इसके बावजूद पहले दूध, फिर बसों में किराया, फिर कूड़े पर टैक्स और अब डीजल का भी दाम बढ़ा दिया गया है कर्नाटक में, जिस पर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भी बोल दिया है हमला। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से 3% टैक्स बढ़ाया गया है डीजल के ऊपर, जिसके बाद अब डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है डीजल विक्रेताओं की तरफ से, और ये जो नया आदेश है वो 1 अप्रैल से कर्नाटक में प्रभावी हो चुका है। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल कर्नाटक से टैक्स के यानी कि KST 18.4 से बढ़ाकर 21.17 कर दिया गया है, यानी कि 3% टैक्स को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत फिर एक बार महंगाई का झटका लग चुका है कर्नाटक में रहने वाले लोगों के लिए। और जिस तरीके से यह टैक्स बढ़ाया गया है, जिसके बाद अब कर्नाटक में डीजल की कीमत 88 रुपए 99 पैसे हो चुकी है प्रति लीटर के हिसाब से। और वहीं अगर हम बात करें, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि डीजल में करीब 2 रुपए का इजाफा अब कर्नाटका में किया गया है, जब से कर्नाटक सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ाया गया है। देखिए, एक तरफ लगातार सरकार टैक्स बढ़ा रही है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। और आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटका की विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को निष्कासित किया गया, और इसे एक तरफ तो ये मुद्दा उठाया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने इस बढ़ती महंगाई पर कर्नाटका की सिद्धरमैया सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के MLC, विधायक, तमाम नेता आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज लगातार हर चीज पर दाम बढ़ा रही है। सुनिए किस तरीके से बीजेपी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस सरकार से सीधा सवाल किया है। The arrogance of the chief minister. Arrogance because when Bharatiya Janata Party has hit the streets against this Congress government, against the price hike. Today, Bharatiya Janata Party, all our MLA, MLCs, ex-MLAs, we are protesting at Freedom Park against the price hike. And last night, the decision of Siddaramaiah government to increase diesel price by 2 rupees, it's really arrogance. I really don't understand. The problem with this government is, including chief ministers, the entire cabinet, they are sitting here in Bangalore. They are running administration by sitting in the AC room. Probably they are not able to understand the sufferings of the common man in the state. Hence they are taking such a hasty decisions. They are not able to understand the ground reality. This Congress government is not able to understand the sufferings of the common man. They are under a imagination. Due to their guarantees, people are very happy. Due to their Congress guarantees, people are very happy. They are not facing any trouble. Probably this is there in the mindset of ruling Congress government. So firstly, I demand our Chief Minister and their cabinet colleagues, rather than sitting here in Bangalore, let them travel all across the state. Let them understand the ground reality. Let them understand the sufferings of the common man. Only then they will understand the crux of the matter. Otherwise, when BJP has decided to carry on protest from today onwards, increase by 2 rupees on diesel prices, they could not have taken such a hasty decision. So demand Siddaramaiah to have some sympathy towards
common man. Have some sympathy towards Aam Aadmi and roll back his price hikes. Well, there is a I'm told Speaker is traveling. Some senior officials on behalf of Speaker, they will take our representation. So the issue is very clear. The decision taken by Honorable Speaker, suspension of 18 Bharatiya Janata Party MLAs who are protesting on the floor of the House. When they are protesting on the floor of the House peacefully, suspending all 18 BJP MLAs with strict conditions, unheard of. Suspending an elected representative for 6 months, curtailing their powers, they are not allowed to attend the committee meetings. What nonsense is this? We do respect the Speaker's chair. But Speaker should not have taken such anti-constitutional stand. Speaker should not have acted on behalf of Congress government. Speaker should not have acted as an agent of the state government. So, we demand Honorable Speaker to take back the suspension of all our 18 MLAs unconditionally. Hence, all our MLAs we are protesting in this regard. And one more thing, all our MLA and MLCs, we have already taken a stand. Until and unless the decision by Speaker has not been taken back, we are not going to attend any committee meetings. देखिए, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात पे विरोध कर रही है कि एक तरफ सरकार ने 5 गारंटियां दी, पर 5 गारंटियों के नाम पर सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि सरकार में हर जगह हर चीज पर दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर पर कहा है कि हर चीज पर दाम बढ़ाने वाली सरकार को पहले पूरे कर्नाटक में घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इससे आम व्यक्ति के पर कितना ज्यादा भार पड़ रहा है। और इसी बढ़ती महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आर अशोक ने भी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि ये दाम कम नहीं हुए तो इसी तरीके से बीजेपी के नेता लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। सुनिए आर अशोक का बयान। Yeah, we welcome because the farmers' land will be retained. That's a very prestigious bill. The central government, I appreciate Modi ji. I appreciate Nadda ji, Amit Shah ji, all the BJP leaders, because this is very essential for Karnataka state, because many farmers suicides because of the work issue. So they looted temples, they looted farmers' land, they looted Basava land. Lakhs of money misused in work board, and more than lakh of acres of land is they notified work board. This is also very illegal. That's why this bill is welcome. This will give justice to the India. Sir, your Karnataka government said we are socialistic government, but the kind of inflation which is happening in Karnataka, the price hike is not correct. I told already. Price hike is a very sad thing. The people of Karnataka will teach the Congress for 5 guarantee. They are looting the Karnataka by tax on the poor people. Diesel prices also increased last night. Today we are protesting against the diesel price. We are protesting against the price hike of Karnataka Congress government. देखिए, सीधा आपने देखा कि कांग्रेस को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और उनका कहना है कि कर्नाटका को लूटने का काम कर रही है कांग्रेस की सरकार। क्योंकि आपके लिए यहां पर हम बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पेट्रोल, डीजल या फिर दूध, दही और तमाम चीजों पर पैसे कर्नाटका सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हों। पिछले साल भी इसी तरीके से पेट्रोल, डीजल पर बढ़ोतरी की गई थी सिद्धरमैया सरकार के द्वारा, और दूध और दही की
अगर बात करें तो अभी तक एक पूरा साल भी नहीं हुआ था कि पिछले ही दिनों जो कि फैसला इस ही महीने से लागू हो चुका है, दूध दही पर भी 4 रुपए का इजाफा सरकार के द्वारा किया गया, बसों का किराया भी बढ़ाया गया है और बिजली की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि कूड़े पर भी पैसा बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, यानी कि जो टैक्स है कूड़े पर उसे भी सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि सरकार का दिवालियापन आ चुका है और इसीलिए अब वो कूड़े पर भी टैक्स लगा रही है। और यही तमाम चीजें यानी कि यही चीजें कहकर बड़ा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी और इसी के साथ साथ सिद्धरमैया की सरकार पर, क्योंकि राहुल गांधी ने कर्नाटका चुनाव के दौरान काफी ज्यादा वादे कर्नाटका की जनता से किए, जिनमें महिलाओं को पैसे देने का भी वादा था, जिस पर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और महिलाओं को उनकी किस्त अभी तक नहीं दी गई है, जो अब लगातार सवाल पूछ रही हैं कर्नाटका की सरकार से। सुनिए प्रहलाद जोशी का ये बयान। कर्नाटका सरकार वही एक गार्बेज बन गए है, तो देश के लिए एक गार्बेज बन गए हैं। तो गार्बेज के लिए इतना बड़ा टैक्स, ठीक है, क्लीनलीनेस के लिए कुछ इधर उधर थोड़ा लगाता है तो ठीक है, हजार रुपए लगाने का जो है ये पूरा सरकार पॉपर हो गया है, दिवाली हो गया है। अगर आपको मैं बताऊं तो शुरुआत से लेके लिकर से लेके प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के साथ पेट्रोल डीजल और रोड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का, बैंक में अगर लोन लेना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो चार्ज लगाते हैं वो, ये सब पहले वो 20 रुपए था, अभी 100 रुपए करा दिया है। और अगर 5 लाख से ज्यादा लोन रहे तो वो 100 रुपए होगा 500 रुपया फॉर द लोन। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट आज कर्नाटक में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया इस सब के कारण। और ये व्हीकल टैक्स, इवन कमर्शियल व्हीकल टैक्स इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, अभी गार्बेज टैक्स लगा दिया है। और वो भी गार्बेज टैक्स अकॉर्डिंग टू दी पर स्क्वायर मीटर इतना करके गरीबों को भी वो लागू होता है। ऐसे करके मेरा अंदाजा है ये लोग हर बरस हम 50,000 रुपए फ्री के लिए जो गारंटी थे वो गारंटी के लिए दे रहे हैं, ऐसे जो बताते हैं। कम से कम ये लोग 75 to 80,000 रुपीज जो टैक्स बढ़ाया है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाया है और दूध का जो बढ़ाया है, दूध का बढ़ाया है, लेकिन फार्मर्स का जो दूध प्रोड्यूसर है उनका वो पास ऑन नहीं हो रहा है। ये सब देखते हुए कर्नाटक में 75-80,000 करोड़ दे आर कलेक्टिंग। एंड अभी 3 महीने से ये गृहलक्ष्मी करके जो 2,000 रुपए इन लोगों ने जो अकाउंट में डालता था वो 3 महीने से नहीं किया है। और जब भी संबंधित मंत्री जो लेडी है, जब उनसे पूछा जाता है आज ही डालेंगे, युगादी में डालेंगे, ये अभी जो मुसलमान का त्योहार गए ना ईद में डालेंगे, ऐसे बोलते गए, अभी तक नहीं है जी। तो मीन्स करप्शन में इस सरकार पूरा पॉपर हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। और ये गार्बेज टैक्स का इस हाई टैक्स जो लगा है उसका मैं खंडन करता हूं। सर, सरकार आज वो बिल ला रही। तो देखिए कांग्रेस की लगातार पोल पट्टी खुल रही है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव में लगातार महंगाई का गीत गाने वाले राहुल गांधी और उनकी पार्टी की अब ये पोल पट्टी नजर आ रही है कि अन्य राज्यों पर हमला बोलते हैं पर कभी कर्नाटक या फिर हिमाचल का हाल नहीं देखते कि किस तरीके से एक यानी आर्थिक जो चीजें हैं उन पर भी लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं और महंगाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलकर कहा जाता है कि देश में महंगाई है। ये दोहरा रवैया आज कांग्रेस का सामने आ चुका है, जिस पर अब लगातार सवाल भी उठ रहे हैं और आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर इस पर जरूर बताइए। धन्यवाद।